Very good afternoon to everyone. Am I audible? Okay, thank you, Adarsh, Shashank, everyone. Good afternoon. So let's proceed. From today onwards, we are going to start new chapter as software metrics. So let me share the screen. Once again, just let me know, is it visible to you guys? Okay, thank you, Adarsh. Okay, so let's proceed. So today's topic is software metrics. So in this chapter, we will learn some theoretical aspects of software metrics, why it is being applied and what is exactly software metrics, along with numerical portion as well. तो आज के लेक्चर में हम दोनों ही चीजें देखेंगे, some theory and numerical. However, I will focus on numerical more comparatively the theory one. तो थोड़ा सा जल्दी हम थ्योरी को स्किप करेंगे और न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे बिकॉज it might take some time. Okay, so however, let me start. What is software metrics all about? So software metrics, as mentioned, what and why. So there are a few points are there through which you can come to know what is exactly software metrics and why it is needed or why it is required. So through software metrics, we can identify following points like how to measure the size of a software, how much will it cost to develop a software, how many bugs can we expect, when can we stop testing, when can we release the software. Along with that, what is the complexity of a module? What is the module strength and coupling? What is the reliability at the time of release? And which test technique is more effective? However, we will go through various testing approaches, testing mechanism throughout the you can say next chapter. So, but we through this software metrics, we can able to identify which particular test matrix is more effective in terms of more defects that we can identify. So are we testing hard or are we testing smart? What is a scenario over there? Do we have a strong program or a weak test suite? So these are the few questions which can be answered through software metrics. However, as far as the definition of software metrics is concerned, then this is the official definition that you are also supposed to mention in examination. So let's have a look at that. Software metrics can be defined as the continuous application of measurement based techniques to the software development process and its products to supply meaningful and timely management information together with the use of those techniques to improve the process and its products. In short, software metrics is what measurement key techniques हैं through which we can identify various aspects of software development processes. ओके, कि जो भी प्रोडक्ट हम या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को हम मेजर कर सकते हैं. अब वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? उसकी रिलायबिलिटी हो सकती है, उसका कोई किसी सेंस में एस्टिमेशन हो सकता है, ऑन व्हाट ग्राउंड वी आर गोइंग टू और व्हाट इन व्हाट डेप्थ वी आर गोइंग टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर. तो ये सारे पैरामीटर्स हम मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर मीट्रिक्स. ओके, there are some categorization of software metrics as well, like number first is product metrics, that is describe the characteristics of the product such as size, complexity, design features, performance, efficiency, reliability, portability, etc. So one can easily identify that all these features are what non-functional attributes. That means कि जो सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, जो बेसिक फीचर्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट these all are the non-functional attributes. So product metrics can be
identify, through which we can characterize like these things. As far as second category, that is process metrics, is concerned, then it describes the effectiveness and quality of the processes that produce a software product. For example, how much effort required in the particular process, what is the time to produce the product, effectiveness of defect removal during development, number of defects found during testing, and maturity of the process कि कितने particular test हमने लगाए और कितनी errors या कितने defects हमको identify हुए, how much they are effective likewise. So these are all process metrics. Apart from these two types, one more category is there, like project metrics. It describes the project characteristics and execution. For example, number of software developers कि एक product को develop करने में total how many software developers are required. Again, staffing pattern over the life cycle of the software. See, even in a traditional life cycle model, there are various phases. So it is very obvious that you need different number of employees or different background or domain employees through each and every phase. For example, for requirement analysis, you might require 4 to 5 members. For designing, you may require 6 to 7 members. For coding, you may require 10 to 12 or 10 to 15 development इंचार्जेस. Likewise, तो हर particular phase के लिए अलग अलग आपको staff size चाहिए होगा. Okay, so through which we can identify the various staffing pattern over the life cycle of the software. Cost and schedule, तो जैसा कि हम पिछले वाले में देख चुके थे project planning में, through Kokomo model we can also calculate the cost and schedule over there, and what is the productivity over there. So these are the some categories for software metrics. Along with that, we are having different counting rules. अब यहाँ से सब लोग ध्यान से सुनेंगे. इससे पहले का जो portion था, that was like theoretical portion. Okay, from here onwards, numerical portion is starting. To solve a particular numerical for calculating various software metrics, we have to follow various rules. Okay, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ये रूल्स लिखे होंगे, काउंटिंग रूल्स फॉर सी लैंग्वेज. However, these rules are applicable for most of the programming languages. Okay, तो आगे अभी आपको कुछ 15 रूल्स मिलेंगे. Once again, I would not say कि आपको 15 के 15 रूल याद रखने हैं, but yes, you are supposed to gone through thoroughly. Okay, so that कि जब आपको थोड़े से रूल का एक आइडिया रहेगा, you will be able to solve the numerical. Okay, so just have a quick view of these rules. However, as mentioned, it is counting rules for C language, but applicable for most of the programming languages. Comments are not considered. अभी considered का मतलब क्या है? देखिए, दो तरह की चीजें हम इसमें identify करेंगे. Operator and operands. Let me write. जरा एक दो लोग मुझे रेस्पॉन्ड करें, पता लगे कि सुन भी रहे हैं नहीं. यस, फिटिंग, गुड गुड गुड, अब अच्छा है. पता लगा, लगता है कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ. चलिए, अब ध्यान से समझते चलिएगा. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन आएगा जरूर. ओके, दो टॉपिक को हमको कंसिडर, दो पॉइंट्स को हमको कंसिडर करना है. वन इज ऑपरेटर, अनदर वन इज ऑपरेंट. ओके, नट शेल में आपको बता रहा हूँ. हाउएवर रूल्स भी आप देखेंगे, अभी 4 ये हैं और बाकी की रेस्ट ऑफ 11 विल बी देयर. शुभांशी जी, अनम्यूट करने पर फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, है ना? दैट्स व्हाई. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फॉलोइंग द गाइडलाइंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, चलिए कोई बात नहीं. अगर आपको कुछ कहना है तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ. एनीवेज, मीनवाइल थोड़ा सा इस पे प्लीज फोकस कीजिएगा कि ये 15 रूल्स अभी आप देखेंगे, 4 आपके सामने हैं, 11 और आएंगे, लेकिन इन सारे रूल्स का नटशेल मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एक प्रोग्राम हमको यूजुअली या तो गिवन होगा या हमसे प्रोग्राम लिखवाया जाएगा. ठीक है, हम मान के चलते हैं कि प्रोग्राम इज गिवन टू अस. उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें ऑपरेटर आइडेंटिफाई करने हैं और ऑपरेंड आइडेंटिफाई करने हैं. ऑपरेटर क्या होगा? जो कुछ भी प्री डिफाइंड है. ठीक है, आई रिपीट, जो कुछ भी प्री डिफाइंड है वो सब ऑपरेटर, और जो कुछ भी यूजर डिफाइंड है वो सारा
ऑपरेंड। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पॉइंट्स को हमें कंसीडर ही नहीं करना होता। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, कमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। अगर किसी प्रोग्राम में कोई कमेंट करके लिखा हुआ है, स्लैश एस्टेरिक के आगे कुछ लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू कंसीडर इट, कि उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ना तो वो ऑपरेटर है, ना ही वो ऑपरेंड है। ओके, सिमिलरली द आइडेंटिफायर एंड फंक्शनल डिक्लेरेशंस आर नॉट कंसीडर्ड, इनको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। However, all the variables and constants are considered as operands. अब देखिए वेरिएबल कांस्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि ये यूजर इनको डिफाइन करेगा। जैसे मैं करूं इंटीजर आई जे, या इंटीजर ए बी सी, या एक्स वाई जेड, तो ए बी सी एक्स वाई जेड आई जे ये मैंने डिसाइड किया था वेरिएबल नेम। ओके, क्योंकि यूजर ओरिएंटेड था और यूजर डिक्लेयर्ड था, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ऑपरेंड्स। okay, however global variables used in different modules of the same program are counted as multiple occurrences of the same variable. Additionally, local variables with the same name in different functions are counted as unique operands. अब operators देख लीजिए, नंबर 6 पर function calls are considered as operators. All looping statements, for example do, while, for, all control statements like if, else, then are considered as operator. क्यों operator? क्योंकि ये do, while, else, then ये सब क्या है, प्री डिफाइंड है ये। ओके, सिस्टम डिफाइंड है, मशीन लैंग्वेज ओरिएंटेड है ये, तो हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा था, इनको सिर्फ यूज किया था हमने। सो दैट्स व्हाई दे ऑल आर ऑपरेटर्स। तो ठीक इसी तरह से कुछ लिस्ट हमको दी हुई है, लाइक दिस वन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आप देखिए जैसे रिटर्न, डिफॉल्ट, कंटिन्यू, ब्रेक, साइज ऑफ आर कंसिडर्ड एज ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। ऑल द ब्रैकेट्स, कॉमास एंड टर्मिनेटर्स आर कंसिडर्ड एज ऑपरेटर्स। थ्रू आउट द प्रोग्राम जितने भी ब्रैकेट होंगे, जितने भी कॉमास होंगे, जितने भी टर्मिनेटर होंगे, दे विल बी नोन एज ऑपरेटर्स। अब ब्रैकेट के सेंस में एक चीज मैं आपको कुछ लिख कर देता हूँ, वो ध्यान रखिएगा अभी। Yes, I have mentioned three types of brackets. अब किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में इनकी अकरेंस मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, कि स्मॉल ब्रैकेट है तो भी मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, करली ब्रेसेस है, इवन देन एरे के केस में स्क्वायर ब्रैकेट भी आ सकता है। हमेशा इनको हम पेयर में ही काउंट करेंगे, कि टोटल पेयर ऑफ करली ब्रेसेस कितनी टाइम्स अकरेंस है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। इसको इंडिविजुअली नहीं करेंगे, हमेशा पेयर में करेंगे। जैसे ओपनिंग है तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी होगा, तो ये एक पेयर हो गया। ये बात समझ में आई है सभी को? जस्ट रेस्पॉन्ड, वी विल, गुड। चलिए तो आगे चलते हैं अब। तो इस तरह से ये स्लाइड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही। तो ये रूल्स आप थोरोली पढ़ भी सकते हैं। माय फोकस इज ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन। तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं अभी। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, दिस इज नेम्ड एज हॉलस्टेड सॉफ्टवेयर साइंस मेजर। बी मेंटली प्रिपेयर कि न्यूमेरिकल जब आएगा तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के नाम से भी आ सकता है, एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू कैलकुलेट और आइडेंटिफाई वेरियस हॉलस्टेड सॉफ्टवेयर साइंस मेजर्स। ठीक है, तो ये नेम कहीं लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इस नाम से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। However, Halstead is a researcher who has identified some rules and regulations and formulation to calculate various software science metrics. Okay, and these regulations or rules are termed as token count. अब टोकन काउंट के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे द साइज ऑफ द वोकेबुलरी ऑफ अ प्रोग्राम which consists of the number of unique tokens used to build a program is defined as। अब ये फॉर्मूला है आपके सामने। आप में से कुछ लोग शायद इसको ईटा बोलेंगे, कुछ नीटा बोलेंगे, वट एवर यू वुड लाइक टू से, प्लीज नोट इट डाउन दिस फॉर्मूला। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, आगे इसको हमें सॉल्व करना है। ईटा इज इक्वल टू ईटा 1 प्लस ईटा 2। जस्ट नोट इट डाउन। where eta is equal to what? Vocabulary of a program।
अब इसका कैटेगराइजेशन देखिए, ईटा वन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स, एंड ईटा टू इज व्हाट, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स। अब इसको समझिए क्या करना है। फॉर्मूला इज दिस वन, ईटा इज इक्वल टू ईटा वन प्लस ईटा टू। जितने भी ऑपरेटर हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, ये क्योंकि प्री डिफाइंड है तो उसको हम लिखेंगे। मान लीजिए गो टू है, स्विच है, गेट सी एच है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये सारी चीजें क्या है, यूजर यूजर डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड है। तो इन सब की हम एक टेबल बनाते चलेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर टर्म आया और कितनी बार आया। तो जो यूजर डिफाइंड होगा वो कहलाएगा ऑपरेंड्स, सॉरी यस ऑपरेंड्स, और जो प्री डिफाइंड होगा वो कहलाएगा ऑपरेटर। तो जितने भी ऑपरेटर आए वो सब मेरे कहलाएंगे ईटा वन, जितने भी ऑपरेंड्स आए वो सब मेरे कहलाएंगे ईटा टू। ओके। हाउएवर अभी आपको जब हम पूरा एग्जांपल देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आप ये मान के चलें कि जितने भी टोटल ऑपरेटर्स हैं, यूनिक ऑपरेटर्स हैं, दे विल बी नोन एज ईटा वन, एंड ऑल द यूनिक ऑपरेंड्स जो यूजर डिफाइंड थे, दैट विल बी नोन एज ईटा टू। इन दोनों का एडिशन विल बी नोन एज vocabulary of a program and can be represented through eta. Okay, so that's why the formula is eta is equal to eta 1 plus eta 2. So I hope ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. Let's proceed to the next slide for next formulation. The length of the program in the terms of the total number of tokens used as capital N is equal to N1 plus N2, where capital N is what, program length, और ये कैसे आइडेंटिफाई होगी, on the calculation or summing up the N1 and N2. N1 is what, टोटल अक्रेंसेस ऑफ ऑपरेटर, कि जितने ऑपरेटर ईटा वन में आपने आइडेंटिफाई किए थे उनकी टोटल अक्रेंसेस कितनी है। फॉर एग्जांपल इंटीजर मान लीजिए थ्रू आउट द प्रोग्राम 5 टाइम्स आया, ठीक है, सेमीकोलन पूरे प्रोग्राम में 11 टाइम्स आ गया, या करली ब्रेसेस थ्रू आउट द प्रोग्राम 8 टाइम्स आ गए, टोटल 8 पेयर थे, है ना। तो इन सबको जब हम सम अप करेंगे तो ये मेरा कहलाएगा N1। N2 इज व्हाट, अकरेंसेस ऑफ ऑपरेंड्स की जो यूजर डिफाइंड टर्मिनोलॉजी से, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया था, कुछ वेरिएबल्स ए बी सी, थ्रू आउट द प्रोग्राम ए मैंने देखा कि दैट इज काउंटेड लाइक 5, कि 5 बार ही थ्रू आउट द प्रोग्राम वेरिएबल ए हैज बीन यूज्ड या मेंशन्ड है उसमें, वेरिएबल बी इज मेंशन्ड 6 टाइम्स एंड सी इज मेंशन्ड वंस अगेन 6 टाइम्स। तो ये सब इनका टोटल क्या हो जाएगा, total occurrences of operands, that is N2. Okay, so please note down this formula as well. Just hurry up. So I hope you have noted down. So let's proceed to the next slide for next formulation. Yes, now we are supposed to calculate volume of the given program or volume of the program that we just mentioned. So V is equal to N into log base 2 into eta. अब ये ध्यान रखिएगा log base 2 है यहाँ पर, ओके, सो log 10 बेस पर नहीं है, log 2 बेस पर है ये। So N into log base 2 into eta. The unit of measurement of volume is the common unit for size bits. That means कि V जो कुछ भी आएगा, whatever the value of V will be, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बिट्स, की फलाना नंबर ऑफ बिट्स, फॉर एग्जांपल 100 bits or 200 bits or 150 bits, whatever the amount is. It is the actual size of a program if a uniform binary encoding for the vocabulary is used. तो इन तीन फॉर्मुलेशन के बेसिस पर हमें प्रोग्राम का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, चाहे हम वैक्यूलरी की बात करें, वोकेबुलरी की बात करें, टोटल काउंट की बात करें या वॉल्यूम की बात करें। सो हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट ऑल दीज रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर नॉट इन आवर सिलेबस। तो हॉलस्टेड के लिए हम ये तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, ईटा, कैपिटल एन एंड कैपिटल वी। So just note down this formula as well, so that we can move towards a programming part or numerical part. Note down this formula as well.
I hope you have noted down. So let's proceed to the example. Yes, there is an example one. Consider the following program and compute various solid state software science measures. अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कोई एक प्रोग्राम हमने आपको दे दिया और उसके बेसिस पर या तो ये कह दें कि हॉल स्टेट सॉफ्टवेयर साइंस मेजर्स आइडेंटिफाई करनी है, कैलकुलेट करनी है, या फिर आपको सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी है। तो दोनों ही बातों का मतलब एक ही है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, उसको जरा देखिए। लुक एट दिस प्रोग्राम। अब दो चीजें हैं। फर्स्टली या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको, तो पहले या तो उसका स्नैपशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। आई एम गिविंग 1 minute टू एवरीवन फॉर नोटिंग डाउन, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नोट इट डाउन। एंड डू लेट मी नो whenever you noted it. ओके ग्रेट। अब इस प्रोग्राम को ध्यान से समझें, देखें और दो तीन बातों को हमेशा याद रखिएगा वाइल सॉल्विंग हॉल स्टेट सॉफ्टवेयर साइंस। कि मैं वो केस बता रहा हूँ जहां पर क्वेश्चन पेपर में ही प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब मान लीजिए यही प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं है, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ऐसा मत कर दीजिएगा कि अगर कहीं पर कोई एरर है इस प्रोग्राम में, आपको लगता है कि कहीं एक सेमीकोलन मिसिंग है या एम्परसेंड मिसिंग है या परसेंट सिंबल इज मिसिंग, वट एवर द केस, तो वो आप करेक्ट करने लग जाएं। नो, आपको करेक्ट नहीं करना है, आपको प्रोग्रामिंग की एरर नहीं सुधारनी है। वट एवर द प्रोग्राम इज गिवन टू यू, उसके बेसिस पर आपको सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको प्रोग्राम को करेक्ट नहीं करना है। यही प्रोग्राम है। कितनी लाइन्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लाइन्स आर देयर। ओके, considering all these 9 lines, now you are supposed to identify Halstead software science measures. कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू segregate all the operators and operands. ओके, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो जाए। दूसरा मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि अभी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको शायद थोड़ा सा देर में समझ में आए, लेकिन जैसे आप दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आप फटाफट क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पैटर्न पता लग जाएगा। बट माई सजेशन इज कि ऑलवेज मूव टूवर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू एंड। बीच में स्किप मत कर दीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, कोई सी चीज रह जाएगी और आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर सीनियर्स एंड सुपर सीनियर्स। जल्दबाजी में वो बीच बीच में कूद जाते थे, है ना, कि ये लाइन दिख रही है इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व कर लें, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट या कुछ भी यूजलेस इवन वो टर्म छूट जाता था, उसकी वजह से पूरी कैलकुलेशन गलत होती थी। सो माई सजेशन इज वंस अगेन, please read the program or please consider the program from first line, then second line, then third line up to the last. Okay, so let me move towards the very first line. मैं इसका सॉल्यूशन अभी 2 मिनट बाद दिखाता हूँ आपको। मैं अभी इस लाइन पर हूँ। ओके, वेयर इट इज मेंशन एज इंटीजर मेन एंड स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए इंटीजर, दिस इज व्हाट, इज इट यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड। और अगर कोई चीज प्री डिफाइंड है तो वो क्या होनी चाहिए? ऑपरेटर। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर एक ऑपरेटर मिल गया, दैट इज इंटीजर। अब जरा चेक करके बताइए, इस इंटीजर की थ्रू आउट दिस प्रोग्राम अकरेंस कितनी है, कितनी बारी आया है ये आईएनटी? जरा चेक करके बताएं, कमेंट पे लिखें मुझे।
एग्जैक्टली ऋतिक, एब्सोल्युटली ओके। शुभांशी जी, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को देखिए, देखिए दो बार इंटीजर है यहाँ पर। ओके, सो दैट मीन्स अकरेंस इज टू। इंटीजर की आईएनटी कितनी बार लिखा है यहाँ पर? दो बार लिखा है, एक पहली लाइन पर है और एक तीसरी लाइन पर है। ठीक है, अब आपने देखिए ये कंसीडर कर लिया हुआ है, मैं दूसरा मार्क ले लेता हूँ यहाँ पर, लाइक दिस, दैट यू हैव कंसीडर्ड। अब अगला क्या है? मेन। अभी मैं देखिए फर्स्ट लाइन पर ही हूँ। अब मेन आपने कहीं लिख लिया होगा, मतलब कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा अभी। अब बाकी के प्रोग्राम में चेक कीजिए कि मेन टोटल कितनी बार है, इसकी मेन की अक्रेंस कितनी है, चेक करके बताएं। वन टाइम्स, एब्सोल्युटली ओके ऋतिक, एग्जैक्टली शुभांशी, वेरी गुड। तो मेन कितनी बार हो गया उसकी अक्रेंस? वन हो गई। ओके, क्या अभी भी फर्स्ट लाइन पे कुछ बाकी रह गया है? यस, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट प्रेयर। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम ये चेक कीजिए कि स्मॉल ब्रैकेट का पेयर कितनी बार है, जरा चेक करके बताएं। एग्जैक्टली ऋतिक, वेरी गुड। शुभांशी, व्हाट शुड बी योर आंसर? वेरी गुड। बाकी लोग सब सो गए क्या, केवल यही तो पढ़ रहे हैं? ऋतिक, शुभांशी। अभिषेक, ये भी है। अरे दो बार कौन है ये? केतन बेटा, दो बार कहाँ मिला है, पांच बार तो चीख चीख के बता रहा है वो। देखिए जो केतन शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे इस ब्लैंक वाले से, इससे और गेट सी एच से, लेकिन देखिए वन टू फोर्थ लाइन पे देखें, फिफ्थ लाइन पे देखें, एंटर नंबर, ये भी तो स्मॉल ब्रैकेट है ना? तो इनको भी काउंट करना है। चलिए, फर्स्ट लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर कोई और ना तो ऑपरेटर है ना ऑपरेंड है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड लाइन। अब चेक कीजिए थ्रू आउट द प्रोग्राम करली ब्रेसेस का पेयर कितनी बार आया है? वन बार, वेरी गुड। ठीक है, इस लाइन में और आगे कुछ है नहीं। नाउ मूव टुवर्ड्स थर्ड लाइन। इंटीजर दैट वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड। ठीक है, पहली लाइन में हमने कर लिया था, उसकी अक्रेंस के टाइम पर भी इसको हमने काउंट कर लिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज स्किप हो गई कि जो स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रेसेस थे, ये क्या है? प्री डिफाइंड है, तो दैट मीन्स दे विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटर्स। ओके, तो अभी तक सारे ऑपरेटर ही आए थे। नाउ लुक एट दिस ए, दिस इज व्हाट? वेरिएबल। ये क्या है? यूजर डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेंड। आई रिपीट, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, इस एक ही जगह में अपना नाम भी लिख सकता था, वो भी वेरिएबल हो सकता था, तो दैट मीन्स इट इज प्योरली यूजर डिफाइंड। और जो भी चीज यूजर डिफाइंड है वो कहलाएगी मेरी ऑपरेंड। ठीक है, अब जरा चेक करें कि ए टोटल प्रोग्राम में कितनी बारी आया है। ओनली ऋतिक रेस्पॉन्डेड येट? आस्था, ओके। शुभांशी, गुड गुड। शशांक, गुड। टोटल थ्री टाइम्स, एक इस लाइन पे दिख रहा है, एक आगे एम्परसेंड ए पर भी, और एक सी इज इक्वल टू ए वाला भी दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल अकरेंस ए की कितनी हो गई? थ्री। नाउ चेक फॉर, अच्छा अभी बी पर नहीं आएंगे, रुकिए रुकिए, देखिए बी से पहले एक ये कॉमा भी है। ठीक है ना, देखिए यही छोटी छोटी बातें याद रखनी है। कॉमा, अब ये कॉमा देखिए क्या है, क्योंकि यूजर डिफाइंड तो नहीं है, प्री डिफाइंड है, इसलिए क्या कंसिडर होगा? ऑपरेटर। अब कॉमा को देखें, टोटल थ्रू आउट द प्रोग्राम कितने टाइम्स है ये? कॉमा एंड सेमीकोलन दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। कॉमा देख के बताएं कितनी बारी है? यस, फाइव टाइम्स, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका अकरेंस लिख दिया। नाउ मूव टुवर्ड्स बी। बी का चेक करिए, ऑपरेंड होगा क्योंकि यूजर डिफाइंड है। बी का अकरेंस कितनी टाइम्स है? थ्री टाइम्स, एब्सोल्युटली ओके। नाउ कम्स कॉमा, बट इट इज ऑलरेडी कंसीडर्ड। ओके, सो इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स सी। सी की अकरेंस कितनी बार है थ्रू आउट द प्रोग्राम? इट शुड बी थ्री। टू मीनवाइल किसने लिखा है? आस्था ने शायद, है ना? आस्था जी, थ्री टाइम्स है। यस, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स दिस सेमीकोलन। अब देखें सेमीकोलन कितनी बार है प्रोग्राम में? वन टू थ्री फोर, एग्जैक्टली सिक्स। ठीक है, तो अब इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, वो अब प्रोग्राम आपके पास है, मान के चलो या तो आपने स्नैपशॉट ले लिया है या इसको नोट डाउन कर लिया है। ओके, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट स्लाइड, that how to mention operators, their occurrences, operands, and their occurrences, and how to calculate the values for eta 1, eta 2, n1, and n2. So let's move towards next slide. Look at this. थॉरोली इसको देख लीजिए और प्रोग्राम के साथ चेक करते चलिए कि क्या एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम देखा है, लिखा है, और मुझे बताएं यहाँ पर कोई डाउट हो तो।
2 minutes given to you, everyone. 2 मिनट में या तो इसको नोट डाउन करिए या समझिए, स्लाइड तो मैं शेयर कर ही दूंगा आप लोगों के साथ। चेक करके बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन है या नहीं है। सिर्फ एक कंफ्यूजन हो सकता है, स्लैश एन, उसको अभी छोड़ दीजिए, उसके अलावा देखें बाकी क्या। 2 minutes to you guys. ऋतिक, मैंने बोला था कि कंफ्यूजन होगा स्लैश एन में, इसलिए अभी उसको छोड़ दीजिएगा। है ना, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन आएगा, दैट्स व्हाई ऑलरेडी मेंशन। अभी इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब चेक कीजिए। I have mentioned something like plus plus and plus symbol, both are different. ठीक है, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जो यूज होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, वो बिल्कुल अलग चीज है। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल जो यूज हो रहा है प्लस माइनस वाला, ये एक अलग चीज है। तो हालांकि इस प्रोग्राम में कहीं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा था, सो वो हमने इसमें मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में ऐसा हो तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाउएवर बोथ आर ऑपरेटर्स। ओके, सो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। एंड सेम केस विद माइनस माइनस। ओके, तो स्लैश एन को अभी स्किप करते हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है इस टेबल में तो पूछें। सारे टोटल वगैरह करके चेक देख लीजिए। एन वन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू, एन टू की वैल्यू, ईटा टू की वैल्यू, लाइकवाइज सब चेक कर लीजिए कि कैसे 14 आया, कैसे 34 आया, एंड ऑल दिस थिंग्स। देन आस्क इफ एनी क्वेरी एक्सेप्ट स्लैश एन। Any query regarding this table except slash n? Only Shubhanshi and Ritik responded. Once again, लगता है सोने का टाइम हो गया सभी का। चलिए, जो भी लोग सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्लीज रिमेंबर इट। ओके ऋतिक, प्लीज रिमेंबर इट। Slash n is always considered
एज ऑपरेंड एज पर रूल। ठीक है, मैंने लिख दिया इसलिए नहीं क्योंकि स्लैश एन को हम हमेशा ऑपरेंड में ही काउंट करते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि ये गलती मत कीजिएगा कि स्लैश अलग ले लें और एन अलग ले लें। मैं लिख करके बताऊं आपको, लाइक ऐसे, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, स्लैश के लिए अलग जनरेट हो जाएगा और एन के लिए एज ए वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हैं, वो अलग हो जाएगा, तो इसका काउंट बन जाएगा 2, जबकि एक्चुअली स्लैश एन है 1 टाइम। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बस बेटा मैं उसी पे ही आ रहा हूँ शुभांशी, मैं समझ रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। स्लैश एन क्योंकि हम एक न्यू लाइन के लिए करते हैं, दैट इज नॉट मैंडेट, इट इज एज पर द चॉइस ऑफ यूजर। ठीक है, मैं चाहूँ तो उसको यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज तो भी मेरा आउटपुट आएगा ही आएगा। स्लैश एन सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि एक नई लाइन पर आ जाए और फॉर क्लियर विजिबिलिटी। ठीक बात। पहली चीज, क्योंकि ये टोटली यूजर डिपेंडेंट है, यूजर चॉइस पर बेस्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ऑपरेंड। कंडीशन अप्लाइड कि स्लैश एन को एक साथ ही लिखा जाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक। दूसरा क्वेश्चन अब आपके माइंड में आ सकता है कि वाई परसेंट डी इज टेकिंग टुगेदर। अगर इसको हम अलग लिख देते तो परसेंट तो मेरा क्योंकि एक प्री डिफाइंड ऑपरेटर हो जाता तो उसका काउंट 1 बन जाता, लेकिन डी को आप अलग नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि डी का आपने कोई वेरिएबल नहीं मेंशन किया था, इंटीजर ए बी सी डी नहीं था कुछ। ठीक है, या डी की जगह आप आई लिखेंगे या फ्लोट के लिए एफ लिखेंगे, इवन देन इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज वेरिएबल। दैट्स व्हाई परसेंट डी या परसेंट एफ या परसेंट आई हमेशा एक साथ ही लिखा जाएगा। दूसरी बात कि परसेंट डी और परसेंट सिंबल, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी उस केस में, जैसे मैंने आपको यूनरी ऑपरेटर के केस में बताया था, है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में। तो क्या ये बात समझ में आ गई है सभी के? जस्ट रेस्पॉन्ड। शशांक रेस्पॉन्डेड। यस एग्जैक्टली ऋतिक, बिल्कुल। जितने भी परसेंट वाले हों, चाहे वो आई हो, ए हो, एफ हो, सी हो, वट एवर द केस, वो एक साथ ही लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे? क्योंकि अगर आप अलग लिख देते हैं तो कंफ्यूजन होगा और उस नाम का आपने वेरिएबल बनाया ही नहीं था, है ना, यही मैंने आपको स्लेशन में भी बताया है। ठीक है। एक और चीज जो मुझे याद आ गई, जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अभी। जी देखें जरा, ये बात समझ में आ रही है सबको? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो उनका काउंट बन जाएगा 3, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा बस। तो वेदर अब ये क्लियर है क्या पूरी टेबल इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स? एक दो लोग जल्दी से रेस्पॉन्ड करें सो दैट आई कैन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। गुड। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लिया, ईटा 1, ईटा 2, N1, N2 ये कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एन एंड ईटा इटसेल्फ, एंड देन वी आर सपोज टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब तीनों ही वैल्यू और तीनों ही फॉर्मूला आपके पास हैं, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। तो जरा चेक करके मुझे बताएं कौन एग्जैक्ट आंसर दे पाएगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर कैपिटल एन, ईटा एंड वी। कोशिश कीजिए जरा, देखें किसका आंसर सही आता है। यस ऋतिक, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। नाउ कैलकुलेट वॉल्यूम। जो भी लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लीज कैपिटल एन, ईटा, ईटा की जगह जैसे ऋतिक ने लिखा आई टी है वैसे लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, या स्मॉल एन बना दीजिएगा तो भी वो समझ में आ जाएगा। एंड वी, तीनों वैल्यू एक साथ लिखिए और देखते हैं किसका सही आंसर आता है।
वॉल्यूम आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया होगा पहले। ऋतिक ओके बट यूनिट इज मिसिंग। जो भी लोग आंसर दें वॉल्यूम का वैल्यू अलोंग विद यूनिट। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना मैथ्स, तो मैथ्स वाले सर बोलते थे वाट एवर द आंसर की 100 हाथी घोड़े क्या है ना। तो बताइए क्या चीज़ है ये, यूनिट क्या है इसकी। निखिल जी पे आपने यूनिट लिखी है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। वॉल्यूम इज नॉट ओके। कैपिटल एन एंड ईटा इज ओके बट वॉल्यूम कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई। और ऐसा क्यों हुआ है ये भी बता दूं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि log बेस 2 है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल टू कैलकुलेट log बेस 2। अब जल्दी से करेक्ट आंसर दें मुझे। शुभांशी जी, अभिषेक। वैल्यूज ओके, ये यूनिट क्या लिख दी ऋतिक। अरे अभिषेक बिल्कुल गलत कर दिया दोस्त, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करिए। जिसने फॉर्मूला नोट नहीं किया है वो यहाँ से नोट कर ले फिर से फॉर्मूला। और देखिए यहाँ भी यूनिट लिखी हुई है, यूनिट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ बिट्स। देखिए ऋतिक बेटा, सेकंड लाइन में देखिए द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज कॉमनली नोन एज साइज इन टर्म्स ऑफ बिट्स। ओके। और फॉर्मूला जिसको भी गलती हो रही है वो नोट कर लें, फॉर्मूला log बेस 2 है। अब जल्दी से बताएं आंसर। इट्स ओके ऋतिक, नो इश्यूज। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस कि आज हमारा लेक्चर हो ही गया, कल भी एक लेक्चर है। परसों यानी वेंसडे को जो लेक्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो नहीं होगा, रीजन बीइंग आई विल बी ऑन लीव। ओके। सो कुछ लोग शायद सेशन लीव कर दिया है तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वेंसडे का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नहीं होगा, कल वाला होगा एज यूजुअल। सो एनीवेज ये तो और अलग आंसर आ गया अभिषेक, पता नहीं कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। जरा वैल्यूज में शेयर करता हूँ, चेक कीजिए। नोट डाउन कर लें या स्नैपशॉट ले लीजिए, देखिए दैट शुड बी द आंसर। यस शुभांशी, नाउ इट इज ओके। नो इश्यूज बट यू गॉट द पॉइंट, दैट इज फाइन। समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1-2 मिनट से। तो जरा बताएं ये आज का प्रोग्राम समझ में आया है क्या सभी को। क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा होगा शायद। जी निखिल, नाउ इट इज ओके।
तो चलिए बी मेंटली प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल इन क्वेश्चन पेपर ओके. So this is all for today. हाँ, नाउ आई गॉट द पॉइंट कि अगर आप फ़ोन से कर रहे होगे तो शायद एक्यूरेट नहीं आया होगा, शायद क्या वो एक्यूरेट नहीं आया होगा। आप कैलसी से करो तो होगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। कल एक और प्रोग्राम देखेंगे और उसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा आप लोगों की, केवल प्रोग्राम शेयर किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोग मुझे बताएँगे। ओके? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट भी देखते हैं फिर कुछ और प्रोग्राम। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय। और बस ये बाकी के फ्रेंड्स को बता दीजिए, क्लासमेट्स को, वेडनेसडे का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नहीं होगा। ओके, कल होगा। गॉड ब्लेस यू डियर।